ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک چالاک بڑھیا رہتی تھی۔ بڑھیا کا کوئی رشتہ دار یا اولاد وغیرہ نہیں تھی۔ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اس کے پاس صرف ایک طوطا تھا جو بڑھیا کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑھیا اپنی جوانی کے دنوں میں بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھی، اور وہ اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس میں غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کیا کرتی تھی۔ اس کے پاس موجود طوطا بولنے والا تھا۔ بڑھیا نے اسے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں کرنا سکھائی تھی، خاص طور سے اپنی تعریفیں۔ اس نے طوطے کو سکھایا کہ جب بھی اس کے گھر میں کوئی ملنے کے لیے آئے تو وہ اس کے سامنے بہت سی تعریفیں کرے۔ لہٰذا جب بھی بڑھیا کے گھر پر کوئی بھی ملنے آتا، طوطا مہمان کے سامنے بڑھیا کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ گاؤں کے بہت سے نوجوان اس سے شادی کرنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن وہ اپنے غرور کی وجہ سے کسی کو منہ تک نہیں لگاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ کسی سلطنت کا شہزادہ آئے گا اور اس سے شادی کرے گا، لیکن اس کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہ ہو پایا۔ آہستہ آہستہ اس کی عمر ڈھلتی گئی، اور تو اور لوگوں نے اب اس کے لیے رشتے بھجوانا چھوڑ دیے۔ بڑھیا کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اور اب کوئی شہزادہ تو دور کی بات، کوئی عام اور واجبی شکل و صورت کا شخص بھی اس سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اس کے غرور کی وجہ سے لوگوں کو اس سے اب نفرت ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اب بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس کمانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دن بدن غریبی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر کی چیزیں بیچنی پڑ رہی تھی۔ اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا، جو کہ ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ وہ اسی ایک کمرے میں کھانا وغیرہ پکاتی اور ادھر ہی سویا کرتی تھی، لیکن چونکہ اب کہ اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا تو تھک ہار کر ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ شہر جائے اور جا کر کوئی کام ڈھونڈ لے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اگلے دن صبح صبح شہر کے لیے اپنا سامان باندھنے لگی اور اپنے طوطے کو لے کر شہر کے راستے پر نکل گئی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی فال نکال کر لوگوں کو اس کی قسمت بتا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس بڑھیا کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بھی فال نکال کر لوگوں کی قسمت بتانا شروع کر دے، مگر سوال یہ تھا کہ کیسے؟ اسے تو فال نکالنا آتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ وہ اس آدمی سے پوچھے کہ فال کیسے نکالتے ہیں۔ وہ اس آدمی کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، کیا تم مجھے مہربانی کر کے فال نکالنا سکھا سکتے ہو؟ میں بہت غریب ہوں اور میرے گھر والے بھی نہیں ہیں۔ لیکن وہ آدمی بولا کہ یہ میرا ہنر ہے، اور میں اگر اسے تمہیں سکھا دوں گا تو یہ میرا کیسے رہے گا؟ میری کمائی بھی بند ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ بڑھیا مایوس ہو گئی، کیونکہ اس آدمی نے اس کو سیدھا سیدھا منع کر دیا کہ وہ اسے فال نکالنا نہیں سکھائے گا۔ تو اس عورت نے سوچا کیوں نہ وہ گاؤں جا کر لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دے کہ وہ فال نکالنا جانتی ہے، اور ان کو جھوٹا فال نکال کر دے۔ یہ سوچ لے کر وہ وہاں سے شہر جانے کی جگہ واپس گاؤں آ گئی، اور اس نے اپنے طوطے کو سکھانا شروع کر دیا کہ کیسے اس کے ساتھ مل کر فال نکالنے کا جھوٹا ناٹک کرنا ہے۔ اس کو کچھ عرصہ لگا اپنے طوطے کو یہ سمجھانے میں۔ طوطے نے یہ سب سیکھ تو لیا تھا، مگر اسے یہ بات بہت بری لگ رہی تھی کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اس نے اس بڑھیا کو سمجھانا چاہا کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر اس بڑھیا نے کہا، تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے، ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ جس پر وہ طوطا مان گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ وہ اور بڑھیا شہر جا کر کوئی ڈھنگ کا کام کر لیں، یہاں لوگوں سے جھوٹ بولنے کی بجائے۔ ویسے بھی اس نے اپنی جوانی میں اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کر کے اپنا بہت وقت برباد کر لیا تھا، مگر بڑھیا سے یہ سب کہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا بڑھیا اس کی بات نہیں مانے گی، اور وہ اسی لیے چپ چاپ راضی ہو گیا۔ آخر کار اسے رہنا بھی اس بڑھیا کے ساتھ ہی تھا، تو اس نے تھک ہار کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ بڑھیا کے ساتھ روز فال نکالنے کا جھوٹا ناٹک کرے گا۔ اور پھر اگلے ہی دن صبح صبح وہ طوطا اور بڑھیا فال نکالنے کے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔
उन्हें वहां बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी वहां आया। बुढ़िया ने तोते की मदद से फॉल निकालने का नाटक किया और उसे उसकी किस्मत के बारे में झूठी बातें बताईं। इक्का दुक्का लोग फॉल निकलवाने के लिए उस बुढ़िया और तोते के पास आने लगे। वो दोनों मिलकर लोगों को धोखा दे रहे थे। तोते को अब भी सब बुरा लग रहा था, मगर बुढ़िया बहुत खुश थी कि थोड़ी बहुत सही लेकिन कमाई तो हो रही है। पूरे दिन में ग्राहक इतने ज्यादा तो नहीं आते थे क्योंकि आज पहला दिन था। बुढ़िया ने सोचा कि कल दोबारा मैं यहीं आकर बैठूंगी ताकि मजीद लोग मेरे पास आएं। पूरे दिन में इतनी कमाई जरूर होगी कि वो बुढ़िया और तोता आज का खाना आराम से खा सकते थे। दोनों ही बहुत खुश थे। उनको जितने पैसे मिले थे उन्होंने उनसे बाजार जाकर सौदा सलफ खरीद लिया और घर वापस आ गए। घर आकर उन्होंने खाना खाया और अगले दिन के लिए सो गए। तोते को ये बात अब भी बहुत बुरी लग रही थी कि उसने इतना झूठ बोला है और धोखाधड़ी से पैसे कमाए हैं। अगले दिन वो फिर बुढ़िया के साथ सुबह सवेरे ही फुटपाथ पर फॉल निकालने के लिए आ गया। और आज के दिन कल की बदौलत लोग ज्यादा आए थे और आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात पूरे गांव में मशहूर हो गई कि एक बुढ़िया यहाँ किस्मत का फॉल निकालती है। देखते ही देखते हर जगह उसके नाम के चर्चे होने लग गए और ये बात उस बुढ़िया के मोहल्ले में मौजूद एक नेक बुजुर्ग तक पहुंच गई। वो बुजुर्ग निहायत शरीफ और नेक इंसान थे। पूरे गांव में उनकी दानिशमंदी के चर्चे थे। उन्हें जब इस बारे में मालूम पड़ा कि उस बुढ़िया ने लोगों की किस्मत का फॉल निकालना शुरू कर दिया है तो उसे बहुत बुरा लगा और उन्होंने चाहा कि क्यों ना उस बुढ़िया को समझाया जाए। वो उस बुढ़िया के पास गए और उन्होंने उसको समझाना चाहा कि देखो, तुम बहुत सारे काम कर सकती हो, ये काम बहुत गलत है और गुनाह भी है। इस्लाम में ऐसे काम की कोई जगह नहीं। तुम अल्लाह को नाराज करने वाला काम कर रही हो, इस काम को मत करो। मगर उस बुढ़िया ने उस बूढ़े बुजुर्ग की एक बात न सुनी, बल्कि उल्टा ही उसे सुनाने लगी कि तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन वो नेक बुजुर्ग फिर भी उस बुढ़िया को समझाते रहे, लेकिन वो बुढ़िया उनकी एक ना सुनती थी। फिर एक दिन तंग आकर बूढ़े बुजुर्ग ने उसे समझाना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये बुढ़िया तो बात मान ही नहीं रही, क्यों ना गांव वालों को समझाऊं कि फॉल निकलवाना गलत बात है, शायद वही समझ जाएं। ये बात उन्होंने पूरे गांव के लोगों को जमा करके समझाना चाहिए। वो दिन रात लोगों को ये बात समझाते रहे कि फॉल निकलवाना गलत बात है और किस्मत का हाल हम इंसानों को नहीं पता होता। वैसे भी वो बुढ़िया सिर्फ धोखाधड़ी कर रही है। लेकिन बुढ़िया की तरह लोग भी उसकी एक ना सुनते थे। लेकिन उनकी इतनी मेहनत और इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लगने लगा कि बूढ़ा सच कह रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों ने बुढ़िया के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया और अल्लाह से तौबा कर ली। जब ये बात बुढ़िया को मालूम पड़ी कि उस बूढ़े की वजह से उसके कारोबार में मसला हो रहा है, तो उस बुढ़िया ने सोचा क्यों ना उस बूढ़े से बदला लिया जाए। उसने अपने तोते के साथ मिलकर एक मंसूबा बंदी शुरू कर दी कि क्यों ना वो उस बूढ़े के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दे कि वो बूढ़ा लोगों से झूठ बोलता है और वो एक चोर है। उसने अपनी पूरी कहानी बनाई और तोते को नेक बुजुर्ग पर इल्ज़ाम लगाना सिखाया और फिर उसे गांव भर में उड़ने को कहा। तोता मजबूरी में पूरे गांव में उड़ता, हर घर जाकर बैठता, हर दुकान पर जाकर बैठता और एक ही बात बोलता कि वो बूढ़ा चोर है और उसने बुढ़िया के सारे पैसे चुराए हैं। पहले तो लोगों ने तोते की बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब तोता रोज़ यही बात करने लगा तो ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव का हर एक इंसान उस बूढ़े से नफरत करने लग गया। वो बूढ़ा पहले तो समझ ना पाया कि ये हुआ क्या है, लेकिन फिर जब उसे समझ आया तो वो बहुत गुस्सा हुआ। वो जान गया था कि उस चालाक बुढ़िया की कारस्तानी है। उस नेक बुजुर्ग ने तो उस औरत से भलाई करना चाहिए थी, लेकिन उस औरत ने उस पर ही उल्टा चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। उस बूढ़े ने गांव के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मासूम है, उसने कोई चोरी नहीं की, मगर लोग अब उसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे। पहले लोग उसके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे, अपनी कीमती अशिया की हिफाजत उससे सौंपा करते थे,
मगर जब से लोगों में ये बात मशहूर हुई कि बूढ़ा चोर है और झूठ बोलता है, लोगों ने अपनी चीज़ें उससे वापस ले ली। वो बुढ़िया देख रही थी कि वो नेक बुजुर्ग खूब बदनाम हो चुके हैं, और फिर उसने एक और मंसूबा बनाया और लोगों से कहना शुरू किया कि क्या पता कि तुम लोगों ने जो चीज़ें अमानत के तौर पर उस बुजुर्ग के पास रखवाई थी वो उसने चुरा ली हों और नकली चीज़ें तुम्हें दे दी हों। लोगों ने जब बुढ़िया की बात सुनी तो उनके दिमाग में ये भी ख्याल आया। यही सोचकर सबने अपनी अपनी चीज़ों की तहकीक करवाई तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनके जेवरात नकली हैं और नोट भी नकली हैं। लेकिन बूढ़े को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लोग उसके ऊपर भरोसा करना छोड़ चुके थे और उसको एक जिल्लत भरी जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। लेकिन एक दिन बूढ़े ने सोचा क्यों ना वो उस चालाक बुढ़िया के पास दोबारा जाए और उसको समझाए। वो दोबारा बुढ़िया के पास गया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुढ़िया उससे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसे अपने घर में देखकर शोर मचाने लगी और कहने लगी, बूढ़ा मेरे घर पर चोरी करने आया है, कोई उसे यहाँ से निकाले। गांव के लोगों ने शोर सुना तो बुढ़िया के पास चले आए और बुजुर्ग को वहां देखकर लोग गुस्से से आग बगोला हो गए कि ये बुजुर्ग इतनी जिल्लत सहने के बाद भी चोरी से बाज नहीं आ रहा। लोग उसे चोर चोर बोल रहे थे। बुजुर्ग ने उन सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही झूठ बोला है, लेकिन लोगों ने उसकी एक भी ना सुनी। उल्टा उन्हें बूढ़ा जहां भी दिखता था वो चोर चोर के नारे लगाते थे और वो चाहते थे कि वो बूढ़ा ये गांव छोड़कर चला जाए, लेकिन उसके बुढ़ापे की वजह से वो उसे गांव से नहीं निकाल रहे थे। वो बूढ़ा तो अब सही से जी भी नहीं सका था। लोग उसे जहां देखते थे उसके ऊपर गुस्सा करते थे और बोलते थे कि तुम झूठे हो और तुम चोर हो। बूढ़ा इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ गया था। वो हर वक्त रोता रहता और अल्लाह से दुआएं मांगता था कि वो इसकी मदद करे। वो जानता था कि एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा, इसीलिए वो ज़्यादातर खामोश रहता था। वो मानता था कि अपनी सच्चाई किसी के आगे पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रब जानता है कि वो मासूम है, तो उसके साथ इंसाफ होगा। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए। लोगों ने दोबारा से उस बुढ़िया पर यकीन करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से चालाक बुढ़िया का कारोबार वापस पहले जैसा चलने लगा। उस चालाक बुढ़िया ने धोखाधड़ी से खूब पैसे कमा लिए थे, लेकिन उसका तोता इन सब चीज़ों से खुश ना था। उसको झूठ बोलने से नफरत होती जा रही थी। वो सोचता था कि जिस दिन लोगों को मालूम पड़ा कि वो दोनों झूठ बोलते हैं तो इन दोनों का क्या हशर होगा। बुढ़िया तो सज़ा भुगतेगी ही भुगतेगी, लेकिन मुझे भी इसके साथ सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो तोता थोड़ा अक्लमंद था, इसलिए उसने सोचा बुढ़िया को समझाने की एक और कोशिश करता हूँ। वो बुढ़िया के पास गया और उसको समझाया कि एक दिन तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है। इतना झूठ बोलने का क्या फ़ायदा, हम रोज़ इतना झूठ बोलते हैं। जिस दिन सच सबके सामने आया हमारे साथ गांव वाले क्या सलूक करेंगे, क्या तुम सोच सकती हो। लेकिन बुढ़िया ने अपने लालच की वजह से उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। वो अपने लालच में बेहद अंधी हो चुकी थी कि उसको सिवाय पैसों के और कुछ नज़र ना आया करता था, और उन पैसों के लिए उसने तोते की बात भी ना सुनी और उल्टा उसको धमकी देने लगी कि अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे और मेरा दिमाग खाते रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी जगह कोई दूसरा तोता ले आऊंगी जो मेरा फर्मा बरदार भी होगा। लेकिन वो तोता फिर भी ना माना और वो कोशिश करता रहा कि किसी तरह बुढ़िया इन कामों को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानती थी। तंग आकर बुढ़िया ने उस तोते को एक पिंजरे में बंद कर दिया और कई दिनों तक उसे खाने को ना दिया और कहने लगी, यही तुम्हारी सज़ा है, अब इसे भुगतो क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। फिर तोते ने उसे बोला कि खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बुढ़िया मान गई क्योंकि उसके पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। वो गांव के लोगों को क्या जवाब देती कि अचानक से उसका तोता कैसे बदल गया। इसीलिए उसने उस तोते को बाहर निकाल दिया और खाना पीना दिया। तोता काफ़ी कमज़ोर हो गया था कुछ दिन ना खाने की वजह से, इसलिए उसने सोचा कि उसे 1-2 दिन बाद वापस काम पर ले जाएगी, तब तक वो तंदुरुस्त हो जाएगा। 1-2 दिन बाद तोता तंदुरुस्त हो गया
तो वो वापस काम पर चले गए। कुछ दिन और गुजर गए और सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन तोता उड़कर उस बूढ़े के पास गया जो कि अपने घर में जाए नमाज पर बैठकर दुआ मांग रहा था। उस तोते ने उस आदमी से कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं नहीं चाहता कि बुढ़िया की वजह से मैं भी झूठ बोलूं, लेकिन बुढ़िया मानती ही नहीं है, उल्टा मुझे ही धमकाती है। मैंने उसको बहुत मना किया था कि ये हरकत ना करो, लोगों से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, मगर वो नहीं मानती। जिस पर बूढ़ा दंग रह गया कि ये क्या बोल रहा है। तोते ने बुजुर्ग की आंखों में उलझन देखी तो उसे बताया कि बुढ़िया को लोगों की किस्मत का फॉल देखना नहीं आता, बल्कि वो झूठा ढोंग रचाती है। फिर तोते ने उस बुजुर्ग को पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे वो जवानी से लेकर अब तक लोगों से गलत सलूक करती आई है और अब इतना बड़ा झूठ बोल रही है कि वो किस्मत का हाल जानती है। आप पर भी उसने इल्ज़ाम लगाए। ये सुनकर बूढ़े ने सोचा, अब इस औरत को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। तोते और बुजुर्ग ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। तोता फुर से उड़ा और हर दुकान, हर घर पर जाकर लोगों से कहने लगा कि बूढ़ा मासूम और बुढ़िया झूठी। ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई कि बुढ़िया झूठी है, लेकिन कोई उस बात का यकीन नहीं कर पा रहा था। तोता लोगों के सामने बोलता कि किस तरह से बुढ़िया ने उस नेक बुजुर्ग पर इल्ज़ाम लगाया। तुम्हारे जेवरात दरअसल उस चालाक बुढ़िया ने ही चोरी किए थे और उनकी जगह नकली जेवरात रख दिए थे ताकि बुजुर्ग को चोर साबित कर सके। वो गांव में उठता जाता और ये सारा वाकया बार बार दोहराता कि बुढ़िया झूठी है, उसको किस्मत का फॉल नहीं देखना आता। उसने बूढ़े के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। बुजुर्ग ने कोई चोरी नहीं की, बल्कि वो सारी चोरी उसने खुद की थी। इल्ज़ाम बूढ़े के ऊपर लगा दिया। बूढ़ा मासूम है, इसको इंसाफ दिया जाए। ये बात आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर मशहूर होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उस चालाक बुढ़िया के पास जाना छोड़ दिया। उन लोगों को उस नेक बुजुर्ग के ऊपर वापस यकीन होने लग गया और बुजुर्ग ने उन लोगों को समझाया कि फॉल निकालना बहुत गलत चीज़ है। जिस पर लोगों ने कहा, हाँ बुजुर्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुजुर्ग की बात को अब समझ चुके थे, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि बुढ़िया झूठी और मक्कार है। अब बुढ़िया पूरे गांव में किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक ना रही थी। उसके पास जितना पैसा बचा था वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसको बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था और वो उसी जिल्लत के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने पर तैयार थी, क्योंकि वो माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी। उसका गरूर अब भी ना टूटा था, लेकिन लोगों को सच मालूम पड़ गया था और बूढ़ा मासूम साबित हो चुका था। लोगों ने बूढ़े से माफ़ी मांगी और वो तोता जिसने एक अच्छा काम अंजाम दिया था, वो अब उस बूढ़े के साथ एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी गुजार रहा था, ना कि उस बूढ़ी की तरह जिल्लत उठा रहा था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम जितना भी झूठ बोल लें, जितना भी गुरूर कर लें, आखिरकार वो गुरूर टूट ही जाता है और वो झूठ सबके सामने आ ही जाता है, जिसकी वजह से हमें जिल्लत उठानी पड़ती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।